تھا رانو چڑیا اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ اتنا وقت ہو گیا ہے، پتہ نہیں لاڑو چڑیا کہاں گئی ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا ہے کہ صبح صبح کہیں نہ جایا کرے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی لاڑو چڑیا گھونسلے میں واپس آ جاتی ہے۔ لاڑو چڑیا، تم گھونسلے کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گئی ہوئی تھی؟ دیدی، آج موسم بہت سہانا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ جنگل میں گھوم کر ہی آتی ہوں، تو اس لیے میں جنگل میں گھومنے گئی تھی تاکہ نظارے دیکھ سکوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے باہر کوئی کام ہے تو میں باہر جا رہی ہوں۔ آپ ہمیشہ باہر چلی جاتی ہیں اور آپ کے پیچھے سے مجھے گھر کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اس جنگل میں کچھ برے پکشی چوریاں کرتے ہیں، اس لیے میں تمہیں گھر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ اس کے بعد رانو چڑیا اپنا کام کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ دیدی کو مجھ پر شک ہے کہ میں گھر کا دھیان نہیں رکھ سکتی، پر میں رکھ سکتی ہوں۔ اس جنگل میں گوری کوی اور کالو کوا ساتھ رہا کرتے تھے۔ واہ، کیا سہانا موسم ہے گوری کوی۔ آج تو میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر گھوم پھر کر آؤں۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ کالو کوے، اگر موسم سہانا ہے تو تم دانا کیوں نہیں لے آتے؟ ارے کیا دانا پھر سے ختم ہو گیا؟ ابھی میں نے کل ہی تو لا کر دیا تھا تمہیں، اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ بتاؤ مجھے ذرا تم۔ جو تم لائے تھے وہ ختم ہو گیا ہے، اب جاؤ کچھ اور لے کر آؤ۔ میں نے اتنی مشکل سے کبوتر کو جھانسا دیا تھا، پھر اس نے مجھے دانا دیا تھا اور تم نے ایک دن میں ختم کر دیا۔ اب میں دانا کیسے لاؤں گا اتنی دور سے؟ یہ میری پریشانی نہیں ہے کہ تم دانا کیسے لاؤ گے، مجھے تو دانا چاہیے۔ اوہو، اب میں کیا کروں؟ اچھا چلو ایسا کرتا ہوں، آج کسی اور پکشی کو لوٹتا ہوں۔ میں اتنی دور کھیت جا کر تو دانا لانے والا نہیں، یہاں سے کسی پکشی کو پکڑتا ہوں اور اسے جھوٹ بول کر دانا لے لوں گا۔ کالو کوا کسی پکشی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو کوا اڑتا اڑتا رانو چڑیا کی بہن لاڑو کے پاس آتا ہے۔ کالو کوے، کیا حال ہے تمہارا؟ بڑے دنوں بعد آنا ہوا، کیسے ہو؟ لاڑو چڑیا، مجھے تم سے مدد کی ضرورت ہے۔ میری بیوی بیمار ہے اور مجھے اس کے لیے تھوڑی سی مدد چاہیے تھی، کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیا ہوا گوری بہن کو؟ مجھے تھوڑا صحیح طریقے سے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ میری بیوی بہت بیمار ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دانا چاہیے تاکہ میں اس کو دے سکوں۔ اب میں اتنی دور جا کر دانا کہاں سے لے کر آؤں؟ کیا تم تھوڑا سا دو گی؟ گوری بہن کے ساتھ تو بہت زیادہ برا ہوا کہ ان کو بہت تیز بخار ہے۔ میری دیدی نے بہت سا دانا جمع کیا ہوا ہے، میں تمہیں وہ دے دیتی ہوں۔ تمہارا بہت احسان ہوگا مجھ پہ اگر تم مجھے تھوڑا سا دانا دے دو گی اس میں سے۔ میری بیوی بھوکی ہے، اس کو دینا ہے مجھے جا کر۔ کالو کوے، یہ لو دانا، یہ دانا تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کر گوری کوی کو کھلا دینا، اور یہ دانا تمہارا تقریباً 1 ہفتہ چل جائے گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ لاڑو چڑیا، اور اپنی بہن کو بھی شکریہ کہنا میری طرف سے۔ اگر سارے پکشی تم جیسے ہو تو جنگل کتنا خوبصورت ہوگا۔ ارے شکریہ کی کیا بات ہے، میرا تو فرض بنتا تھا آپ کی مدد کرنا۔ اس کے بعد کالو کوا وہ دانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ آج میں نے کالو کی مدد کی، جب دیدی سنے گی تو کتنا خوش ہوں گی وہ۔ تھوڑی دیر بعد ہی رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتی ہے۔ رانو چڑیا لاڑو چڑیا کے منہ کو غور سے دیکھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، ارے لاڑو، آج تو تم بہت خوش لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ دیدی، آج میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، کالو کوے کی مدد کی ہے۔ اچھا، تم نے مدد کی ہے کالو کوے کی؟ کیسے کی ہے مدد؟ کالو کوا میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بیوی بہت بیمار ہے، اسے دانا بہت دور سے لانا پڑتا تھا، اس لیے میں نے اسے دانا دے دیا اور اس کی مدد کر دی۔ لاڑو، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے سارا کا سارا دانا کالو کوے کو دے دیا؟ ہاں دیدی، میں نے سارا دانا دے کر کالو کوے کی مدد کی ہے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، وہ کالو کوا 1 نمبر کا چور ہے اور 1 نمبر کا جھوٹا بھی، پورے جنگل کو اس کی چوریوں کے بارے میں پتا ہے۔ وہ کالو کوا تمہیں جھانسا دے کر سارا کا سارا دانا لے کر چلا گیا۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کالو کوے نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ لاڑو چڑیا، اپنے آنسو صاف کرو، کچھ نہیں ہوا ہے، چپ کر جاؤ۔ ہم نے جس دانے کو جمع کیا تھا، ہم اس دانے کو دوبارہ جمع کر لیں گے۔ نہیں دیدی نہیں،
जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी घर में बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। कालू कौवे, तुम इतना सारा दाना कहाँ से उठा कर ले आए हो? मैं लाड़ो चिड़िया के पास गया था और उससे मैंने कहा कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे दाने की जरूरत है क्योंकि खेत बहुत दूर है। तो उस बेवकूफ ने मेरी मदद कर दी और मुझे अपने घर का सारा जमा किया हुआ दाना दे दिया। वाह कालू वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने लाड़ो चिड़िया को झांसा दिया और उससे सारा का सारा दाना लेकर आ गए। वाह कालू वाह। फिलहाल ये 1 हफ्ते का दाना है, अब तुम इसको खाओ और जब अगला हफ्ता शुरू होगा तो फिर किसी और पक्षी को बेवकूफ बनाऊंगा मैं। लाड़ो चिड़िया बेचारी तालाब पर बैठकर रो रही थी। मिट्ठू तोता वहाँ बैठा हुआ था। वो लाड़ो चिड़िया को रोता देख उसके पास आ जाता है। अरे लाड़ो चिड़िया, मैं वहाँ दरख्त पर बैठकर तब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम रोए जा रही हो, क्या हुआ? कोई मसला है क्या तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। लाड़ो चिड़िया मिट्ठू तोते को अपना सारा वाकया बता देती है। ओहो, वो कालू कौवा तो है ही 1 नंबर का चोर। तुम उसके झांसे में कैसे आ गई? सब पक्षियों को पता है कि वो झूठ बोलकर चोरी करता है। मिट्ठू तोते, मुझे कालू कौवे से बदला लेना है। मुझे अब और दाना जमा नहीं करना, मुझे वही दाना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लाड़ो चिड़िया, तुम कहती हो कि तुम्हें उसे बदला लेना है। अगर मेरी मानो तो जैसे उसने तुमसे झूठ बोलकर चोरी की है, तुम वैसे ही झूठ बोलकर अपना सारा दाना उसे वापस ले लो। यही सही तरीका होगा मेरी मानो तो। इसके बाद लाड़ो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। कालू कौवे, तुम्हारी बीवी की टांग टूट गई है। वो तालाब में गई थी और पत्थर से टकराकर उसकी टांग टूट गई है। वो वहाँ पड़ी है, तुम उसे ले आओ। लाड़ो चिड़िया, क्या कह रही हो तुम? मेरी बीवी की टांग टूट गई वहाँ तालाब में? मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, वो पड़ी होगी वहाँ। कालू कौवा गोरी कौवी को लेने के लिए तालाब पर चला जाता है। लाड़ो चिड़िया उसके पीछे से अपना दाना और कालू कौवे के जमा किए हुए फल भी ले जाती है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। ये लाड़ो चिड़िया किसकी बात कर रही थी? उसने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। मुझे पहले ही शक था। वो अपना दाना वापस ले गई और साथ में मेरे जमा किए हुए फल भी मैंने मेहनत से जमा किया था। वो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा अंजाम भी कालू कौवे जैसा होगा। चीकू कौवा रात को नशा करके शराब की बोतल लेकर घूम रहा था। वो नशे में बीच जंगल में आ जाता है और बैठ जाता है। आज तो बहुत नशा कर लिया, बहुत चढ़ गया है मुझे। चलो अब यही सो जाता हूँ, अब घर जाने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। चीकू कौवा नशे में पड़ा हुआ था कि थोड़ी देर बाद ही चील आ जाती है। अरे ये कौवा यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ पर लेटा क्यों हुआ है? शायद ये नशे में है। ओए कौवे, बात सुन, तू मरा है कि जिंदा है? मैं जिंदा हूँ, मुझे क्या हो गया? चील, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? मुझे सोने दो, तुम यहाँ से जाओ, तुम जाओ। चलो जी, मेरे मांस का इंतजाम तो हो गया, कल रात को दावत होगी। इसके बाद चील चीकू कौवे को वहाँ से उठाकर ले जाती है। रात गुजर जाती है और सूरज भी निकल आता है और सुबह भी हो जाती है। आज तो मजा आ गया सुबह सुबह उठकर और ये सुहाना मौसम देखकर। पता नहीं मिट्ठू तोता कब आएगा, मुझे दाना लेने भी जाना है। थोड़ी देर बाद ही मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के पास आ जाता है। मिट्ठू तोते, तुम्हें तो बहुत देर हो गई, चलो अब हम दोनों दाना लेने चलते हैं। अरे रानो चिड़िया, एक नई खबर मिली है। चीकू कौवा रात से मिल नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ गया है। मैं उसको सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्या कहा? चीकू कौवा नहीं मिल रहा? उसकी बीवी को पता है उसके बारे में? वो नशे करता है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। मेरा पड़ोसी है, मुझे तो फिक्र हो रही है। उसकी बीवी को भी उसके बारे में नहीं पता। हम पहले गोरी कौवी के पास जाते हैं, वो बेचारी परेशान होगी। चलो ठीक है, सबसे पहले हम उसकी बीवी को ही बता कर आते हैं। मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं।
थोड़ी देर बाद ही वो दोनों गोरी कवि के घर पहुंच जाते हैं। अरे मिट्ठू तोते और रानो चिड़िया, तुम्हें कोई काम था क्या जो यहाँ आए हो? हमें आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। क्या कोई परेशानी की बात है? क्या हुआ है, मुझे बताओ। क्या आपको नहीं पता, आपका पति रात से गायब है। आपका पति चीकू कौवा रात से मिल नहीं रहा है। हम तो सुबह से उसे ही ढूंढ रहे हैं। मैं उसे सुबह से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीकू कौवा मुझे दिन रात मारता ही रहता था। अब मैं उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि वो नशे भी करता था। हमें माफ करना, हमें नहीं पता था कि तुम अब चीकू कौवे के साथ नहीं रहती हो। हमें माफ करना। चलो मिट्ठू तोते, अब हम दोनों यहाँ से चलते हैं। रानो चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। मैंने चीकू कौवे को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो नशे करता था और आकर सिर्फ मुझे पीटता था। अच्छा, तो वो आपसे लड़कर आया था मेरे पास। उसको 1 महीना हो गया है, वो मेरे साथ ही रहता है और पूरी रात गायब रहता है बाहर। मिट्ठू तोते, अब तुम ही बताओ। मैं चीकू कौवे को पूरे जंगल में ढूंढ कर आ गई हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला है। अब मुझे तुम ही बताओ, हम क्या करेंगे? कर मत करो, एक पक्षी जासूस मेरा दोस्त है, मैं उससे कहकर देखता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे और चीकू कौवे को ढूंढ दे। क्या तुम्हारा वो दोस्त चीकू कौवे का पता लगा सकता है? अच्छा चलो, तुम ऐसा करो, अपने घोंसले में जाओ, मैं उससे बात करके आता हूँ, शायद वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। तुम वापस जाओ, मैं वहीं मिलूंगा तुमसे। मिट्ठू तोते, तुम जा तो रहे हो, पर जाते हुए अपना ध्यान रखना। अरे मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मिट्ठू तोता अपने जासूस दोस्त से मिलने जाता है। ओफो, वो अभी तक नहीं आया। रोज 3 बजे वो आ जाता होता है, आज पता नहीं उसे यहाँ इतनी देर की हो गई, पता नहीं कब आएगा वो। थोड़ी देर बाद ही मिट्ठू तोते का दोस्त उसके पास आ जाता है। अरे दोस्त, क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिनों बाद मिले भाई, क्या हाल चाल है? क्या हुआ? यहाँ कोई काम था मुझसे जो यहाँ मेरे पास आए हो, बताओ मुझे। अरे भाई, मेरा पड़ोसी था, चीकू कौवा नाम था उसका, वो पता नहीं कहाँ गया है, मिल नहीं रहा, उसे ढूंढना है। क्या तुम मदद करोगे मेरी? अच्छा अच्छा, वही कौवा ना जो नशे करता है। फिक्र मत करो, मैं उसका पता लगा लूंगा, वो यहीं कहीं होगा। अगर मरा हुआ तो भी बता दूंगा मैं तुम्हें। कबूतर, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी मदद कर रहे हो। फिर मुझे बताने आ जाना तुम उसके बारे में। इसके बाद कबूतर चीकू कौवे को ढूंढना शुरू कर देता है। कबूतर चीकू कौवे को ढूंढता ढूंढता बीच जंगल में आ जाता है। ये बोतल ज़रूर उस कौवे की होगी। मुझे तो लगता है कि यहाँ किसी ने आसपास से उसे उठा लिया है। यहाँ तो आसपास चील रहती है, ये ज़रूर उसी का काम होगा। मुझे जाकर मिट्ठू तोते को बताना चाहिए इससे पहले कि कुछ हो जाए। कबूतर वापस अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। मेरी बात सुनो मिट्ठू तोते, मुझे उसकी शराब की बोतल पड़ी हुई मिली थी, वो जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो बोतल उसी की थी और वहाँ आसपास चील भी रहती है। मेरी मानो तो तुम चील के घर में जाकर उसका पता कर आओ। अरे बाप रे, वो चील तो मांस खाती है। अब अगर उसे उसने उठा लिया हुआ तो वो तो उसे खा गई होगी। मुझे जल्दी जाना चाहिए। हाँ मिट्ठू तोते, बताओ चीकू कौवे के बारे में कुछ पता चला है कि नहीं? चिड़िया, हमें जल्दी करनी होगी। वो कौवा जंगल के बीचों बीच नशा कर कर पड़ा हुआ था, उसकी शराब की बोतल मिली है। वो चीकू कौवे को चील उठा कर ले गई होगी। हमें जल्दी करनी चाहिए इससे पहले कि वो चील चीकू कौवे को कुछ कर दे। अब वो चील के पास है, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। हमें चील के पास जाना चाहिए, अगर वो जिंदा हुआ तो हम उसे छुड़ा लेंगे। चिड़िया, लेकिन उसे तुम अकेले ही छुड़ाने जाओगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि उस चील से मेरी काफी देर से लड़ाई चल रही है। क्या कहा मिट्ठू तोते, तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले? ठीक है, तुम पीछे से मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं खुद ही उससे छुड़ा कर ले आऊंगी। अच्छा चिड़िया, अपना ध्यान रखना तुम। अब तुम उसके पास जाओ। इसके बाद रानो चिड़िया चील के घर की तरफ चली जाती है।
थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया चील के घर पहुंच जाती है। रानो चिड़िया, तुम यहाँ? क्या कोई काम था तुम्हें मुझसे? बोलो। चील, मैं तुमसे चीकू कौवे को यहाँ से वापस लेने आई हूँ। चिड़िया भला, तुम मेरे से मेरा शिकार क्यों छीनना चाहती हो? बोलो। चील, तुम इसे खाने तो वाली हो, पर मेरी एक बात सुनो, ये चीकू कौवा नशे करता है, इसके पेट में जहर भरा हुआ है, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम मर जाओगी। चील, मुझे तो ये पहले से ही पता था कि ये कौवा नशे करता है, पर ये नहीं पता था कि इतने ज्यादा नशे करता है कि इसके पेट में जहर भरा है। मैं तो नहीं खाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छुड़ाने के लिए, वरना ये चील तो मेरा कबाब बनाकर खाने वाली थी। रानो चिड़िया की वजह से चीकू कौवा बच जाता है और हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।